तो जो दो इलस्ट्रेशन हमने देखे, प्लांट एंड मशीनरी वाला है ना, और ये वाला। हेलो बेटा, माइक ऑफ कर लो अपना, ठीक है। From the above two illustration, we know the sort of assertions that are implied in the financial statement. Incidentally, the assertions are generally implied and not specifically spelled out. Though some explicit assertions are also found in the financial statements. Explicit assertions are made when otherwise the reader will be left with an incomplete picture. It may even be misleading. मतलब क्या बोल रहे हो? कुछ बातें हमको एक्सप्रेसली बतानी पड़ती है, नहीं तो यूजर जो है वो समझ नहीं पाता। मतलब कुछ असर्शंस तो वो सोच लेता है कि हाँ इसमें 8,000 लेकिन इसका ये मतलब है, लेकिन कुछ के बारे में वो श्योर नहीं है कि इसका क्या मतलब है, तो कुछ एक्सप्लिसिट हो सकते हैं, है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मर कैटेगरी मे बी फाउंड इन द फॉलोइंग आइटम्स अपीयरिंग इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जैसे सिक्योर्ड लोन है 4 लाख, द डिस्क्रिप्शन डज नॉट गिव ए कंप्लीट पिक्चर। वी डू नॉट नो द नेम ऑफ द लेंडर इफ इट इज रेलिवेंट, the nature of the security provider and the rate of interest which is paid, ठीक है ना। तो a specific mention is required about these things for proper appreciation of the item and the financial position, ठीक है ना। Negative assertions are also encountered in the financial statement and the same may be expressed or implied. For example, if it is stated that no contingent liability, it would be an expressed negative assertion. On the other hand, if in the balance sheet there is no item as building, it would be implied negative assertion that the entity did not own any building on the balance sheet date. बहुत बेसिक बातें हैं कि जो नहीं लिखा है तो वो तो नहीं है, मतलब ऐसा अज्यूम कर लेंगे। कुछ बातें लिख करके बतानी पड़ती है। तो मान ली लिखा है कि भैया कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है, तो मतलब नहीं है ना, ठीक है गाइस। Every financial statement contains overall representation in addition to the specific assertion so far discussed, ठीक है। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन होता है इन एडिशन टू स्पेसिफिक असर्शन। ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट purports to present something as whole in addition to the component details. For example, an income statement purports to present the result of operation. इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है बेटा कि हमारे ऑपरेशन का रिजल्ट क्या निकला। हमारे ऑपरेशन का रिजल्ट क्या निकला मतलब हम प्रॉफिट में हैं या नहीं है, बिल्कुल सही है ना, हम प्रॉफिट में हैं या नहीं, ठीक है ना। फिर क्या है, the auditor's opinion is typically directed to these overall representations, but to formulate and offer an opinion on the overall truth of these statements, he has first to inquire into the truth of many specific assertions expressed and implied, both positive and negative, that makes up each of these statements. बहुत जनरल डिस्कशन है ये। Out of his individual judgment of these specific assertions, he arrives at the judgment on the financial statement as a whole, ठीक है ना। Clear guys? Yeah. Some observation about audit evidence may be of help in deciding upon the technique to be adopted for obtaining them. First, there is nothing mysterious about the evidence when the auditor can obtain and on which he relies. It is straightforward information. Some of it is obtained only by diligent effort. जनरल थ्योरी है ये बेटा रीड करने के लिए, टेक्निकल बात उसमें मतलब कह सकते हो, लेकिन ये जनरल डिस्कशन टाइप ही है, ठीक है ना। टेक्निकल का जनरल डिस्कशन है, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट कुछ के लिए हो सकता है उसको मेहनत करनी पड़े, है ना। सेकेंड, एविडेंस वेरीज इन रिलायबिलिटी, ठीक है ना। पहले बोल रहा है कि देखो एक मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूँ तो शायद तुम्हें समझ में आएगा, है ना। यहाँ से अगर अपन देखें कि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन होता है स्पेसिफिक असर्शंस के अलावा, ठीक है ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एन इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट्स रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, अ बैलेंस शीट purports to present financial position, है ना।
ऑडिटर ओपिनियन टिपिकली डायरेक्ट होता है दीज ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको ओवरऑल किस बात पे ओपिनियन देना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, पोजीशन सही है, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन सही है। लेकिन इस ओपिनियन को बनाने के लिए, है ना, उसको पहले इंक्वायर करना पड़ेगा क्या, इनटू द ट्रूथ ऑफ स्पेसिफिक असर्शन। पहले वो स्पेसिफिक असर्शन चेक करेगा, फिर वो ओवरऑल पे पहुंचेगा, है ना, इम्प्लाइड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, समझना रहे, ठीक है ना। That makes up these statement. Out of his individual judgment of these specific assertion, he arrived at the judgment about the financial statement as a whole. तो इसको ऐसे कर सकते हो, पहले specific assertion, then overall. इसकी बात है पूरे पैराग्राफ में। अब देखो क्या बोल रहा है, some observation about audit evidence may be of help in deciding upon techniques to be adopted for obtaining them, है ना। ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे ऑडिट एविडेंस के बारे में हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करें तो हमको टेक्निक अच्छी पता लग जाएगी। फर्स्ट, देयर इज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट द एविडेंस विच द ऑडिटर कैन ऑब्टेन एंड ऑन विच ही रिलाइज, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन, समझ रहा है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है, बेसिक रूटीन नेचर की, खर्चा हुआ है, तुमने डोमिनोज का पिज्जा मंगाया, डोमिनोज का बिल है, सम ऑफ इट इज ऑब्टेन ओनली बाय डिलिजेंट एफर्ट, बट ऑल ऑफ इट इज ऑफ द कॉमन सेंस वेराइटी। कुछ के लिए हो सकता है एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़े, सब कॉमन सेंस है। सेकेंड, एविडेंस वेरीज इन रिलायबिलिटी, किस एविडेंस पे कितना भरोसा करना चाहिए, वो अलग अलग भरोसा देता है हर एविडेंस। व्हेन द ऑडिटर recalculates certain figures like depreciation or inventory valuation, he may be completely, एक सेकंड बेटा, है ना, जब ऑडिटर रिकैलकुलेट करता है कुछ फिगर्स, हाँ बेटा, ठीक है मैं कर लेता हूँ, है ना, वॉइस तो एटलीस्ट हो जाएगी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है यार, है ना, मेरा फोन जब से गया हुआ है तब से दिक्कत है काफी। चलो ठीक है ना। देखो, व्हेन द ऑडिटर रिकैलकुलेट सर्टेन फिगर्स जैसे डेप्रिसिएशन या इन्वेंटरी वैल्यूएशन, तो फिर वो, है ना, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पर मैंने क्या, रिकैलकुलेशन इट्स अ प्रोसीजर, है ना। तो रिलायबिलिटी कितनी चाहिए उसके बेस पे अपन प्रोसीजर डिसाइड कर सकते हैं, समझ रहा है। मतलब पहला क्या है, फर्स्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस, है ना। सेकेंड बोल रहा है कि रिलायबिलिटी के हिसाब से प्रोसीजर डिसाइड, है ना। However, है ना, information supplied by the employee may not be that reliable because he may have interest in revealing the, मतलब interest in concealing rather than revealing the truth, समझ रहा है, ठीक है ना। मतलब तुम किससे मांग रहे हो कंफर्मेशन, ऑब्वियस ही बात है ना, एम्प्लॉय तो बोल सकता है ना यार, समझ रहा है, क्योंकि वो एंटिटी से जुड़ा हुआ है बेटा, हेलो हेलो हेलो, और ऑडिटर बाहरी व्यक्ति, हेलो 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 गाइस, है ना। So this suggests that we must always be alert to the relative reliability of different kind of evidence. तीसरा, some evidence may be more difficult to obtain than others, है ना। Some are difficult to obtain, है ना, evidence, है ना, ठीक। So to put questions to employees who are present inside the company, it is easy.
ठीक है, देखो ध्यान से. Some evidence may be more difficult to obtain rather than other. It is relatively easy to put questions to the employees. है ना, एम्प्लॉय से क्वेश्चन पूछना आसान है, जैसे बाहर वालों से क्वेश्चन पूछना मुश्किल है ना. इन्वेंट्री चेक करना इजी है, लेकिन अगर इन्वेंट्री कहीं और रखी है तो चेक करना मुश्किल है. क्लियर है. चौथा क्या बोल रहा है, फोर्थ, it must be recognized that the available evidence is persuasive and that the evidence may not be conclusive. ये फ्रेज है बेटा, फ्रेज अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कि ये याद रखने पड़ेंगे, है ना, persuasive rather than conclusive. In giving opinion, the auditor necessarily takes a calculated risk. है ना, मतलब देखो, उसको हर एविडेंस थोड़ा भरोसा तो दिलाता है, लेकिन कोई भी एविडेंस 100% श्योरिटी नहीं दिला सकता. मतलब ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता कि जिसके बाद अपन बोले कि बस अब तो कोई एविडेंस नहीं चाहिए मुझे, ये मैं इसको लेकर मैं 100% श्योर हूं, है ना. तो 100% श्योर किसी चीज को लेकर नहीं हो सकते आप एविडेंस. He gets the best evidence is reasonably available and forms his judgment accordingly. इसलिए उसके ओपिनियन को रीजनेबल बोलते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस. In fact, in auditing it is very difficult at times, impracticable to obtain conclusive evidence both on account of time and cost constraint. समझ में आ रही है बात? 100% काम करना तो इम्पॉसिबल है बेटा. This explains why the auditor gives an opinion rather than some kind of guarantee certificate. तो ऑडिटर गिव्स अश्योरेंस, गारंटी नहीं देता वो. हेलो हेलो हेलो, ठीक है गाइस. वो इतना बोल सकता है, ये ओपिनियन की बात चल रही है बेटा. वो ओपिनियन जब देता है कि बोलता है मैंने ध्यान से देख कर लिए हैं बहुत सारे असर्शन, एविडेंसेस ऑब्टेन करें जैसे मिले, और मेरे प्रोफेशनल जजमेंट में, समझ में आ रहा है, बेस्ट अवेलेबल एविडेंसेस के हिसाब से जितने एविडेंसेस मैंने कंसिडर किए उससे मैंने ओपिनियन बनाया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बता रहा हूं. इसका मतलब समझ रहे हो कि ऑडिटर जब अपना ओपिनियन देता है तो वो ओपिनियन ये नहीं देता कि हाँ भाई सब सही है. वो कहता भैया देखो, मैंने जितना देखा, मुझे जितना मिला, जितना मैंने उस पर रिलाई किया, मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वो सही है. गाइस समझ आ रही है बात? और जब ऑडिटर ऐसा बोल रहा है तो यहां पर क्या खास बात क्या है? जब कोई ऐसा बोल रहा है ना, तो मतलब वो तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर दे रहा है कि भैया देखो ऐसे ऐसे है. वो किसी भी ऐसे मतलब नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं जो किसी भी बात की गारंटी ले लिया करते हैं. हेलो 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 गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है ना. मतलब जो जैसे राय देने वाले या वो लोग नहीं होते हैं नॉर्मल, कि जिनके ओपिनियन ले लो, किसी के रिलेटिव्स होंगे, किसी के फ्रेंड्स होंगे जो बोलते हैं अरे हम बता रहे हैं, अरे हम बता रहे हैं. तो ऑडिटर बेटा प्रोफेशनल है, वो ऐसे ही नहीं ओपिनियन देता रहता कि अरे ये कर लो ये सही है. उसको खुद ही उससे पूछें क्यों कैसे, तो नहीं बता पा रहा, हम बोल रहे हैं ना बस. आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो उसके पास क्यों कैसे का आंसर नहीं होता बहुत सारे लोगों के पास. लेकिन ये जो ऑडिटर है तो ये अपना ओपिनियन देते समय ही क्या बोल रहा है, भैया देखो, कह रहा भैया देखो मैंने जितना चेक किया उस हिसाब से. मतलब फिर तुम ये मत समझना कि वो 100% गलत करेक्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति से गलती हो सकती है और मैंने वैसे भी सैंपल बेसिस पे चेक किया. तो इतना डिटेल, इतना प्रॉपर डिस्क्लोजर क्यों? क्योंकि भैया एकदम आंख बंद करके भरोसा ना कर ले लोग, समझ रहे. लेकिन फिर एक दलील ये हो सकती है कि भैया तुम ऑडिट कर ही काहे करो जब तुम श्योरिटी से नहीं बोल सकते, समझ रहे. ठीक है ना. क्योंकि बेटा अगर ऑडिट होगा नहीं ना तो फिर तो इतनी गलतियां होंगी, इतना सब गलत होगा कि कोई लिमिट नहीं है. दूसरा फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ भी करेंगे. यहां तो एटलीस्ट उसने ब्रॉड लेवल पर चेक कर लिया और उसकी जिम्मेदारी भी है कुछ हद तक, क्योंकि स्टैंडर्ड्स वगैरह ने जिस तरीके से बोला है कि ऑडिट करना उस तरीके से वो ऑडिट करेगा. गाइस समझ आ रहा है आपको क्या बात चल रही है ना. पांचवा,
The auditor may gain increased assurance when audit evidence obtained from different sources of different nature is consistent. ठीक है ना, मतलब सेम, क्या बोलेंगे उसको, सेम एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. ठीक है ना, है ना, सेम एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. अरे 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 अरे, ठीक है, आई, है ना. तो ये 5वां पॉइंट है. ठीक है, कि अलग अलग सोर्सेस से अगर अपन ने इंफॉर्मेशन ली तो भी वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए. तो अपना भरोसा जो है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. तो भरोसा बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, अलग अलग समय. इन द circumstances he may obtain a cumulative degree of assurance higher than that which he attaches to individual items of evidence by themselves. ठीक है. Conversely, when the audit evidence obtained from one source is inconsistent with the information obtained from another, further procedure must have been performed to resolve the consistency. है ना. If not same, perform further procedures. ठीक. 6. The auditor should be thorough in his effort to obtain audit evidence, है ना, and be objective in its evaluation. है ना. Thorough efforts, objective evaluation of evidence. है ना. अब in selecting procedures to obtain evidence, he should recognize the possibility that the financial information may be materially misstated. In selecting procedures to obtain audit evidence, है ना, he should recognize the possibility that the financial information may be materially misstated. उसको जब वो प्रोसीजर देख रहा होगा तो उसको ये मानना पड़ेगा कि भैया, है ना, क्या पॉसिबिलिटी है. वो ये देख लेगा एक बार कि क्या पॉसिबिलिटी की यहाँ पर गलती हो सकती है, रिस्क बोल सकते हो, है ना. 7th क्या बोल रहा है, अब मेरी बात समझना. ठीक है ना, कि तुम एक एविडेंस, सिर्फ एविडेंस की अच्छाई पे जाओगे, फिर तुम बोलो कि भैया किसी भी कीमत पे मुझे ये एविडेंस चाहिए, तो नहीं चलेगा. नहीं आ रहा समझ में. मतलब एविडेंस जो है, एविडेंस कितना कीमती है और उसको ऑब्टेन करने में कितनी कीमत लग जाएगी हमारी. डायलॉग देख रहे हो तुम, डायलॉग आ रहा है समझ में. ठीक है. एविडेंस कितना कीमती है ना, और उसको ऑब्टेन करने में हमारी कितनी कीमत लग जाएगी, इसके बीच का हमको प्रॉपर कंपैरिजन देखना पड़ेगा बेटा. हेलो 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 गाइस, समझ आया क्या, है ना. मतलब ऐसा ना हो ना कि भाई एविडेंस से तुमको हाँ, क्योंकि ऑडिट का खर्चा तो एंटिटी उठाती है, क्योंकि ऑडिट का खर्चा तो एंटिटी उठाती है ना. तो पता चला कि टाइम बहुत लग जाएगा या कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी, तो फिर भैया आपको दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है. मतलब कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस कंसिडर कर लो, है ना. However, the matter of difficulty and expenses involved in testing of a particular is not in itself a valid basis for omitting a procedure. वैसे cost valid procedure नहीं है,
लेकिन ठीक है, कुछ जगह पे वो काम का हो सकता है। अगर आपके पास ऑल्टरनेट है तो क्यों नहीं सस्ता वाला लो, है कि नहीं। और एक, अगर ऑडिटर के पास रीजनेबल डाउट है असर्शन को लेकर के, तो वो सबसे अप्रोप्रिएट है ना, इसको अपन ऐसे बोलेंगे, इफ डाउट रिजॉल्व दैट डाउट। अगर डाउट आया तो बेटा उसको रिजॉल्व करो। मतलब अगर तुमको डाउट आया और तुमने फिर उसको रिजॉल्व नहीं किया, तो कल को फिर तुम्हारे ऊपर बात आएगी बेटा। हेलो 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 गाइस, गाइस, है ना। रीड कर लो फटाफट इसको, और इसको नोट डाउन कर लो, या स्क्रीन सेवर जो भी करना है कर लो। बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये एक्चुअली में एविडेंस का है, हमारे एविडेंस, सुनना, ठीक है। देखो, कंक्लूसिव का मतलब होता है 100%, और परसुएसिव का क्या मतलब होता है? परसुएसिव का मतलब होता है एक रैंडम 70 to 80%। देखो, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझ आ रहा है। जो चीज तुम्हें 70-80% भरोसा दिला दे, कि रीजनेबल वर्ड यूज किया गया है उसके लिए, समझ आ रहा है, रीजनेबल भरोसा दिला दे, वो क्या है? परसुएसिव। जो बिल्कुल पक्के तौर पर कंक्लूड ही कर दे बात को, कि बस बात खत्म, ये है, मतलब अरे बस 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 और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है? कंक्लूसिव। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो आपके कुछ एविडेंस पक्के हो सकते हैं, हाँ, तो आपके पक्के हो सकते हैं एविडेंस, कि एक बार में आपको 50% सेटिस्फेक्शन आ गया, समझ में आ रहा है। कह रहे आधे एविडेंस पे अकेले एविडेंस में कंफर्म कर दी। जैसे डेटर्स के केस में मोस्टली ऐसा होता है कि डेटर्स जो है ना, वो एक बार में आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लो और आप श्योर हो जाते हो, ठीक है, क्लियर है। हम्म, नहीं 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 नहीं, मेरी बात समझो, वो बस रिलायबिलिटी के ऑर्डिनल वे की बात कर रहे हैं। कह रहा भैया, वो उसने लिखा है एम्प्लॉय, लेकिन वहां पर अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे, तो वो एम्प्लॉय वाले कंफर्मेशन को बाहर वाले कंफर्मेशन से कंपेयर कर रहा है, समझ रहा है। वो कह रहा है कि भैया देखो, एम्प्लॉय तुमको अगर कुछ बता रहा है तो वो गलत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नहीं आया समझ में? अरे ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, बस ये बता दी, ये लाइन समझ में आई कि नहीं, है ना। अब देख, एम्प्लॉय वाली बात क्या लिखा है, है ना, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एम्प्लॉय मे नॉट बी दैट रिलायबल, मे नॉट बी दैट रिलायबल, मे भी लगा रहा है और दैट भी लगा रहा है, समझ में आ रहा है। क्योंकि बिकॉज ही मे हैव एन इंटरेस्ट इन कंसीलिंग रादर देन रिवीलिंग द ट्रूथ, तुम उसको एकदम फैक्ट की तरह ले रहे हो, नहीं आ रहा समझ में। वो तो तुमको सारी चीजें सिर्फ कंसिडर करने के लिए बोल रहा है बेटा। और दूसरी बात, इन्वेंट्री वाले में क्यों रिलाय करने को बोल रहा है? कह रहा है कि उसने रिकैलकुलेट किया खुद, ऑडिटर ने, समझ में आ रहा है। अब उसके कैलकुलेशन से तुम एम्प्लॉय का स्टेटमेंट कैसे कंपेयर कर सकते हो कि एक को सही मान रहा है एक को नहीं मान रहा? जिसको उसने खुद कैलकुलेट किया उस पर भरोसा आएगा ना, क्योंकि वो रिकैलकुलेशन वाले प्रोसीजर की बात कर रहा था, समझ में आ रही है बात। अब रिकैलकुलेशन कर लिया तो मतलब 100% श्योरिटी की बात थोड़ी करते हैं कि इन्वेंट्री सही ही होगी रिकैलकुलेशन की, आ रहा है समझ में? हम्म,
क्लियर है गाइस? चलो अब ऑडिट एविडेंस में आगे की बात करते हैं अपन। आगे की बात क्या है? टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, है ना, ऑडिट एविडेंस के टाइप्स। क्लियर है गाइस? है ना। अब चूंकि ऑडिट एविडेंस पे इतना डिस्कशन हो चुका है, आपके लिए काफी आसान होगा आगे का डिस्कशन समझना, है ना। और अगर इसके बाद आप दोबारा वो सारा कंटेंट पढ़ोगे तो इट विल मेक मोर सेंस, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंस, ठीक है ना। अब देखो ये डायग्राम देखो, ये चार्ट देखो, जो भी बोलते हैं उसको वो देखो। सोर्स के बेसिस पे इंटरनल एक्सटर्नल है, नेचर के बेसिस पे विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, ये 3 टाइप के हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बहुत ध्यान से। विजुअल एविडेंस मतलब, हेलो हेलो हेलो, अब मेरी बात ध्यान से समझना, है ना। ऑब्जर्वेशन इज अ प्रोसीजर जिसके थ्रू आपको कौन से टाइप का एविडेंस मिल जाता है? विजुअल जनरली। हेलो हेलो, है ना। और एक है डॉक्यूमेंट्री। अगर आप देखो, नोटिस करो तो एक ऑडिट में मैक्सिमम जो हैं एविडेंसेस वो कैसे होते हैं? डॉक्यूमेंट्री, है ना। और किसी से कुछ पूछ लिया तुमने, किसी ने कुछ बताया, तो वो कौन सा टाइप का एविडेंस कहलाया? ओरल एविडेंस। समझ आ रहा है? बाकी एंटिटी के अंदर से मिला तो इंटरनल, एंटिटी के बाहर से जनरेट हुआ तो एक्सटर्नल। क्लियर है गाइस? है ना। चलो, तो टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस देखो क्या लिखा है। इंटरनल एविडेंस एंड एक्सटर्नल एविडेंस, एविडेंसेस व्हिच ओरिजिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड। याद है जनरेशन, मैंने बोला था ना, जहां जनरेट हुआ उसके हिसाब से तय करेंगे। एग्जांपल अपन ने परचेज इनवॉइस पहले ही डिस्कस कर डाला, याद है? क्या याद है? हेलो हेलो, है ना। सेल्स इनवॉइस, कॉपीज ऑफ सेल्स चालान एंड फॉरवर्डिंग नोट्स, गुड रिसीट नोट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कॉपीज ऑफ कैश मेमो, डेबिट क्रेडिट नोट्स, ये सब हमारे यहाँ बनते हैं, इसलिए ये इंटरनल के हैं। एक्सटर्नल के ऑन द अदर हैंड, एविडेंस दैट ओरिजिनेट्स आउटसाइड, परचेज इनवॉइस, सप्लायर्स चालान, ये मिल जाएंगे तुमको एंटिटी के अंदर, लेकिन ये आए बाहर से हैं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। कोटेशन, कंफर्मेशन, ये सब डन 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 डन। बताओ ज्यादा रिलायबल कौन होगा? ज्यादा रिलायबल कौन सा एविडेंस है? एक्सटर्नल। तो अब आप बहुत ध्यान से, अगर आप प्रॉपरली कनेक्ट कर पाओ तो पूरा ऑडिट एविडेंस का जो डिस्कशन है, कोई सा प्रोसीजर लगाते हैं तो कोई सा एविडेंस मिलता है जिसकी अपनी एक रिलायबिलिटी होती है। 3 सेपरेट टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं वो इस तरह से कनेक्ट होते हैं प्रैक्टिकली। हेलो हेलो हेलो, आपके आंसर में भी हो सकते हैं, मे भी। क्लियर है? क्योंकि एकेडमिकली तो बिल्कुल अलग अलग तरीके से वो डिस्कस किए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो ना, अलग अलग चीज अलग अलग थोड़ी होती है। मैं तो जैसे ही प्रोसीजर परफॉर्म करता हूँ उसी में सैंपल, उसी में मेरे रिलायबिलिटी, उसी में मेरा रेलेवेंस सब घुसा हुआ है। हम उसको पढ़ रहे हैं पार्ट्स पार्ट्स में। समझ में आ रही है बात? ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन अपन ने पढ़ा था फाउंडेशन में, तो अगर मान लो कि बॉडी लैंग्वेज वाला अगर आप थोड़ा सा याद करो, तो बॉडी लैंग्वेज में और पूरे कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज से लेकर के वॉइस है, पिच है, कंटेंट है, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, डिलीवरी है, और मतलब वॉल्यूम है, कितनी सारी बातें अपन अलग अलग से पढ़ते हैं। जब एक पर्टिकुलर बात को पढ़ रहे होते हैं तो उसका सारा डिसेक्शन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप कम्युनिकेट करते हो एक साथ सब हो जाता है। हेलो 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 हेलो, है ना। 4 सेंटेंस बोले तुमने, उन 4 सेंटेंस का अगर एकेडमिक एनालिसिस हो, राइट, आवाज आ रही है ना? है ना। मैंने 4 सेंटेंस बोले, उसका अगर मान लो एकेडमिक एनालिसिस होगा तो हो सकता है कि 2 चैप्टर पढ़ने पड़ जाए। 2 चैप्टर के जितने टॉपिक्स हैं सबके एग्जाम्पल में वो 4 जो मैंने बोला वो डिस्कस हो सकता है।
हर एक टॉपिक का एनालिसिस। समझ गए ना इस बात को? तो इसीलिए कनेक्ट जो करोगे वो तुम्हारे नॉलेज के लिए, इंडिविजुअली जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है। इन एन ऑडिट सिचुएशन द बल्क ऑफ एविडेंस दैट एन ऑडिटर गेट्स इज इंटरनल इन नेचर, ज्यादातर इंटरनल मिलते हैं। However, substantial external evidence is also available to the auditor. Since in origination of internal evidence, client and his staff have the control. ये जो बात बोल रहे हैं बहुत कॉमन सी है और आप सोच भी पाओगे अब अपने डिस्कशन के बाद। एक्सटर्नल मैंने अब भी पूछा, एक्सटर्नल ज्यादा रिलायबल है इंटरनल, तो आपने बोला एक्सटर्नल। अगर मैं इसका क्यों पूछ लूं तो आप जो जवाब दे रहे होगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ रहे? क्योंकि इंटरनल वाले में तो एंटिटी का उन सबका कंट्रोल रहता है। Auditor should be careful in putting reliance on such evidence. It is not suggested that they are to be suspect. मतलब ये नहीं बोल रहे कि शक करो, लेकिन बिना पूरा चेक किए भरोसा मत करो, समझ में आ रहा है? But an auditor has to be alive to the possibilities of manipulation and creation of false and misleading evidence. देखो बहुत ट्रिकी सिचुएशन में अपन ऑडिटर के दिमाग को रखते हैं। मतलब अपन एज ए थर्ड पार्टी अगर ऑडिटर को समझे तो उसको अपन बोल रहे हैं कि हाँ भाई ऑडिटर जाओ जाके चेक कर लेना, ध्यान से चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ ना हो, समझ रहे? ठीक है ना? तो वो कह रहा है कि कुछ गड़बड़ के चांसेस हैं क्या? तो मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, ये सोच के मत जाना कि कुछ गड़बड़ है, समझ रहे? तो पॉइंट समझ रहे हो ना? तो ऑडिटर बोलेगा क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हो? समझ आ रहा है ना मेरी बात? कि हम उसको ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये दिमाग में मत लेके जाना, हम उसको ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये दिमाग में मत लेके जाना कि कुछ गड़बड़ है, हम उसको ये बोल रहे हैं, समझ आया? हम उसको ये बोल रहे हैं कि भैया ये दिमाग मत लेकर के जाना, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई जो चेक करेगा उसके साथ गड़बड़ ना हो, ये जरूर देख लेना। ठीक है ना? तो ये ऐसा ही है, ठीक है। The external evidence is generally considered to be more reliable as they come from third parties, ठीक है, who are not normally interested in manipulation of accounting information of others। अब आप नोटिस करो कि भाई जो सवाल आपके पहले थे उन सबके जवाब हैं इसमें। However, if the auditor has any reason to doubt the independence of any third party, तो वो थर्ड पार्टी पे भी भरोसा नहीं करेगा, ठीक है ना? रिलेटेड पार्टी हो सकती है या जो भी है, तो ज्यादा ध्यान रखेगा वो। As an ordinary rule, auditor should try to match internal external evidence as far as practicable। ये वही बात हो गई कि डिफरेंट सोर्सेस से ऑब्टेन एविडेंस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हेलो 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 गाइस, है ना? तो अगर एक्सटर्नल नहीं है अवेलेबल तो ऑडिटर शुड सी एज टू व्हाट एक्सटेंट, क्या लिखा है आगे, एज टू व्हाट एक्सटेंट द वेरियस इंटरनल एविडेंसेस corroborate each other, है ना? corroborate मतलब कि कितना एडिशनल एविडेंसेस मुझे मिल पाता है। क्लियर है गाइस? है ना? ठीक है गाइस। अब डिस्कशन का आएगा रेलेवेंस और रिलायबिलिटी का। अब डिस्कशन का आएगा रेलेवेंस और रिलायबिलिटी का। तो अब देखो, ध्यान से देखो। While audit evidence is primarily obtained from audit procedure performed during the course of audit, it may include information obtained from other sources। हेलो हेलो हेलो, क्या बोल रहा है? ठीक है ना? एग्जाम्पल देखो, बहुत ध्यान से देखो। प्रीवियस ऑडिट इन certain circumstances and a firm's quality control procedure for client acceptance and continuance। बहुत ध्यान से, वो कह रहा है कि भैया मेरा जो मेन ऑडिट करने का जो काम है ना, उसके अलावा अगर मैं कुछ और काम कर रहा हूं, समझे मेरी बात को, उससे भी मुझे एविडेंस मिल सकता है। मतलब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे सडनली एंटिटी के बारे में पता चल गया, जबकि मैं न्यूज़पेपर इस चक्कर में नहीं पढ़ रहा था कि मैं एंटिटी के बारे में जान लूं। हेलो 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 गाइस, गाइस गाइस, है ना? तो ऐसा है। तो चलो अब पढ़ते हैं रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। नॉर्मली बताओ रेलेवेंस और रिलायबिलिटी का क्या रोल ऑडिट एविडेंस को लेकर के, सोच के बताओ।
रेलेवेंट को एनालाइज कर लो बेटा माइंड में, क्योंकि कुछ लोगों को रेलेवेंस का रेलेवेंस नहीं पता होता है। क्या 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 हाँ, मुझे लगता है कि ये बात अगर तुमको एक्सप्लेन करनी है तो विद एग्जाम्पल ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो वो रिडंडेंट डिस्कशन हो जाएगा कि हाँ रेलेवेंट होना चाहिए। समझ रहा है? मैं तो रेलेवेंस का ही मीनिंग पूछ रहा हूँ ना, तुम बोल रहे हो कि रेलेवेंस रेलेवेंट होना चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ रेलेवेंट होने का क्या मतलब। बोलो भाई। हेलो हेलो। यूजफुल मतलब कैसे? अरे मतलब देखो ना, मैंने पहले भी बताया था तुमको। हाँ ना, उसी को तो इंग्लिश में यूजफुल बोलेंगे ना, वही तो बोला उसने। समझ रहा है? मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, एग्जाम्पल ही पूछ रहा हूँ एक्चुअली मैं। हाँ हाँ। हम्म किसके रिलेटिव? मतलब डेटर अगर रिलेटिव है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, फिर से बोलो तुमने जो बोला, क्योंकि हो सकता है मैं तुमको बोल दूं कि तुम गलत बोल रही हो थोड़ा सा। चलो बोला, फिर से बताओ। रिलायबिलिटी की बात करने लग गई तुम, शायद शायद। बोलो। हम्म अरे नहीं। अच्छा मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर खुद से टेस्ट करना कि तुम जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे कि नहीं, है ना? कोई और एग्जाम्पल है? कोई और एग्जाम्पल है? हेलो। चलो ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है ना? हाँ ठीक है, बोलो। हम्म जरूरी नहीं है। क्यों रिलेवेंट? कौन सी चीज, जैसे कि क्या? मतलब सिर्फ बिल ही है तो? तुम्हारे कहने का मतलब कि फिर बिल ही एक रेलेवेंट चीज है और कोई चीज रेलेवेंट ही नहीं है मतलब? हाँ ठीक है। डन डन डन। लेकिन मैं अगर मान लो कि उस बंदे से ही पूछ लूं, अगर मान लो सीसीटीवी मैंने देखा ही है, अगर मान लो सेल पूरी वैसे रिकॉर्ड होती है तो वो तो ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। चलो ठीक है, मतलब तुम समझ तो गए हो पॉइंट, मैं समझ गया तुम्हारी बात, कि तुम पॉइंट समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, रेलेवेंट का ही मतलब होता है, रेलेवेंट को ना अजर्शन से कनेक्ट करो। मैं जिस पर्टिकुलर अजर्शन को चेक करने जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मेरी जो चेकिंग है, मेरा जो प्रोसीजर है, मेरा जो एविडेंस मिलेगा उस प्रोसीजर को परफॉर्म करके, वो उसी असर्शन को डायरेक्टली हिट कर रहा है, तो ये बात रेलेवेंट है मेरे लिए। अदरवाइज ये बात रेलेवेंट नहीं। समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि भैया, मैं एंटिटी से बोल रहा हूं कि भैया तुमने इस बार बिल्डिंग कितने की खरीदी। समझ में आ रहा है? ठीक है। वो कह रहा है कि भैया इस बार हमने बहुत खर्चा किया है सब चीज में।
समझ में आ रही है बात? क्लियर है? मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल क्या था? भैया तुमने इस बार बिल्डिंग कितने की खरीदी? वो क्या बोल रहा है? भैया हमने इस बार बहुत सारा खर्चा किया सब चीजों में। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? देखो हमने मतलब नई नई मशीनें लगा दी, समझ में, हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं कह रहा हूँ भैया फालतू बातें मत करो। समझ में आ रही है बात? मैंने क्या पूछा कि बिल्डिंग कितने की खरीदी, सिंपल सवाल है। कहाँ है इधर राउंड एंड राउंड घुमा रहे हो गाइस? समझ आया मैंने क्या बोला? हेलो गाइस, पॉइंट समझ में आ रहा है तुम्हें? रेलेवेंस समझ में आ रही है कि उस बात की बात करो ना। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो बिल्डिंग है, समझ में आ रहा है, मुझे चेक करना है कि बिल्डिंग एग्जिस्टेंस में है या नहीं। बुक्स में बिल्डिंग दिख रही है और मैं एग्जिस्टेंस वाला असर्शन कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब उसने मेरे को बिल्डिंग दिखाई, मैं कह रहा हूँ अरे कैसी पुरानी सी दिख रही है, मेंटेन करते नहीं हो तुम इसको। समझ में आ रहा है? ये क्या तरीका है? तो वो मेरे से क्या बोलेगा? बोलेगा कोई सेंस है इस बात की? आ रहा है समझ में? ठीक है, वो मेरे से बोलेगा कि भाई कोई सेंस ही नहीं है इस बात की, तुमको ये देखना था कि बिल्डिंग हमारी जो बुक्स में वो है कि नहीं। समझ में आ रहा है? अब मेरी बिल्डिंग कैसी है, समझ में आ रहा है, उससे तुम्हें क्या लेना देना? क्या तुम वैल्यूएशन चेक कर रहे हो? और हाँ, अगर तुम वैल्यूएशन चेक कर रहे हो तो भी पॉसिबल है कि ये चीज तुम्हारे लिए रेलेवेंट ना हो, क्योंकि हमने कितने की खरीदी, हमने तुमको पूरा डेटा दिया। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? तो भैया मेरे फिक्स्ड एसेट परचेज कॉस्ट पे दिखते हैं। हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ना? रेलेवेंस। अच्छा, रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी क्या है? देखो अब मैं तुम्हारा, हाँ, जैसे वो सेल्स वाला बताया था लेखिका ने, वो रिलायबिलिटी का ज्यादा बेटर एग्जाम्पल है। समझ में आ रही है बात? समझना कि अगर सेल्स चेक कर रहे हो तो सेल्स का जो इनवॉइस है वो ज्यादा रिलायबल मैटर है ना, बजाय कि किसी बंदे से पूछवा दिया उनने मेरे को, अरे इससे पूछ लो हमने सेल करी थी। वो अपने एक वर्कर से पूछवा रहा, कह रहा है इससे पूछ लो हमने सेल करी थी। मैंने कहा क्यों, मैं करी थी? उसने बोला हाँ। ये रेलेवेंट तो है क्योंकि उसी सेल की बात कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ये फालतू बात नहीं है, क्योंकि वो सेल की बात कर रहा है और गवाही एक एविडेंस है। समझ में आ रहा है? इंक्वायरी एक प्रोसीजर है, ओरल एविडेंस एक एविडेंस है, सब बात ठीक है। समझ में आ रहा है? लेकिन भाई मैं तुम्हारी बात पे इतना भरोसा कैसे कर सकता हूँ? और तुम तो वैसे भी एम्प्लॉय हो, तुम तो जो बॉस बोल रहा हो उसको में हाँ मिलाओगे। समझ आ रही है बात? रिलायबिलिटी और रेलेवेंस समझो। मैं सेल्स पूछ रहा हूँ, वो परचेज बता रहा है, ये बात रेलेवेंस की है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बात रेलेवेंस की है। तो ये सेल्स की बात करो ना, तब तो रेलेवेंट है। और जब वो ऐसी बात है कि जिसमें मैं ज्यादा भरोसा कम पर कर पाऊंगा या कम, तो वो मैटर काय का है? रिलायबिलिटी का। हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो 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 बोलो। देखो ये बहुत स्पेसिफिक चले जाएंगे ना हम, स्पेसिफिक असर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट और बोल सकते हो आप। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? कि जब मैं एग्जिस्टेंस चेक कर रहा हूं तो ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जब मैं वैल्यूएशन चेक कर रहा हूं तो ये रेलेवेंट है, क्योंकि फिर मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा ना रिकवरेबिलिटी के लिए। समझ गए मेरी बात? ठीक है। चलो अब देखो, रेलेवेंस डील्स विद लॉजिकल कनेक्शन विद और बेयरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। जो काम कर रहे हो उससे रिलेटेड बताओ। Where appropriate, the assertion under consideration. The relevance of information to be used as audit evidence may be affected by the direction of testing. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, if the purpose of procedure is to test the overstatement in the existing or existence or valuation of accounts payable, है ना, मतलब मैंने फालतू के क्रेडिटर दिखा रखे हैं, अगर मेरा ये पर्पस है, ये चेक करना है ना, तो टेस्टिंग द रिकॉर्डेड अकाउंट पेबल may be a relevant audit procedure. On the other hand, when testing for understatement,
ठीक है ना। द टेस्टिंग फॉर रिकॉर्डेड अमाउंट में नॉट बी रेलिवेंट। कोई समझ पाया इस एग्जाम्पल को? बहुत सिंपल और बहुत काफी अच्छा एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, अनलाइक द इंस्टीट्यूट, लेकिन ठीक है। बताओ क्या मतलब है इसका? बेटा इसमें, अरे दादा, रेलेवेंस कहाँ है इसमें? रेलेवेंस का एग्जाम्पल है, रेलेवेंस से रिलेट ही नहीं किया तुमने, तुमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। रेलेवेंस की बात तो बताओ, नहीं समझे मेरी बात को? अरे यार कुछ भी बोल रहे हो, पढ़ो उसको अच्छे से। हाँ, नहीं 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 नहीं, और कोई? हाँ, हेलो हेलो हेलो, तुम कंटिन्यूसली बोल रही हो या तुम जा चुकी हो, पता नहीं चल रहा है मुझे। हेलो हेलो हेलो, मैं, मुझे किसी की आवाज ही नहीं है, मुझे तुम्हारी आवाज, मुझे आवाज आई और उसके बाद से गायब हो गई, मुझे किसी और की आवाज ही नहीं आई। नित्य कंप्लीट करो तुम अपना पहले। तुमने गलत नहीं बोल दिया, तुमने गलत नहीं बोल दिया। अंडर स्टेटमेंट के लिए एग्जिस्टेंस देखेंगे, तुमने ये बोला। कैसे रिलेट कर रहे हो इस बात को? हम्म, नहीं होना ही वाला रिलेट। हाँ, लेखिका तुम बताओ क्या बोल रही थी? हम्म, देखो अंडर स्टेटमेंट, मेरी बात सुनो, अंडर स्टेटमेंट अमाउंट का ही तो हुआ ना? नहीं, चलो सुनो, अच्छा सुनो, इधर इधर देखो, हो सकता है आप लोग हाँ अच्छा बोलो। हाँ, ये सही बोलो तुमने। देखो जरा ध्यान से देखो, क्रेडिटर्स का अकाउंट है, समझ में आ रहा है? क्रेडिट हुआ होगा अमाउंट, हेलो हेलो हेलो, है ना? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, हेलो हेलो गाइस, 10,000 के क्रेडिटर्स दिखा रखे हैं उसमें। गाइस, मेरी आवाज आ रही है ना? अब उसमें 10,000 के क्रेडिटर्स दिखा रखे हैं। अगर मेरा शक है कि ये 10,000 ज्यादा है, अगर मेरा शक है कि ये 10,000 ज्यादा है, तो ये वाली एंट्री चेक करना जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये मेरे लिए ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि इनमें से कोई एक नकली होगी। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है? लेकिन अगर मुझे लग रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि भैया ये 10,000 कम है, तो फिर ये चार मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। मेरे को तो बाहर जाकर के देखना, क्योंकि ये चार तो है ही, मैं तो यही सोच रहा हूं कि कम दिखाया है, तो भैया मैं और दूसरी जगह जाकर के चेक करूंगा। फिर मेरे लिए ये चार अमाउंट रिकॉर्डेड जो है वो चेक करना कोई मतलब का ही नहीं, क्योंकि अगर मेरा शक ये है कि इन लोगों ने कम दिखाया है,
तो जितने दिखाए वो तो करेक्ट ही दिखाए होंगे, बल्कि और ट्रांजैक्शन एक्चुअल में होंगे जो इन लोगों ने दिखाए ही नहीं। हेलो हेलो हेलो। तो मैं इन चार को चेक करके क्या कर लूंगा, समझे एग्जांपल, है ना। बल्कि फिर मैं वो देखूंगा कि भैया कहां से, मतलब सब्सिक्वेंट कितने पैसे वैसे रिसीव हुए या तुमने पे करे, वहां से मुझे इस बात का एविडेंस मिल सकता है कि यार पैसे आए तो ज्यादा है तुम्हारे पास, तुम दिखा तो कम रहे थे। हेलो हेलो हेलो। ठीक है गाइस। हाँ हाँ हाँ, आ रही है वापस, आ रही। बोलो गाइस, क्लियर है ये, है ना। तो ये अपन ने बात करी थोड़ी सी रेलेवेंस की, है ना। A given set of audit procedure, ये अभी रेलेवेंस की चल रही है। A given set of audit procedure may provide audit evidence that is relevant to certain assertion but not for others। आपकी कुछ प्रोसीजर किसी पर्टिकुलर assertion के लिए तो काम के हो सकते हैं, वही फिजिकल वेरिफिकेशन एग्जिस्टेंस के लिए तो रेलेवेंट है, आ रहा है समझ में, ठीक है, बट इट मे नॉट बी रेलेवेंट फॉर वैल्यूएशन, ठीक है ना। For example, inspection of documents relating to collection of receivables after the account after the period end may provide audit evidence regarding the existence and valuation, but not necessarily cut off। मतलब कि अगर मान लो कि जो अपन रिसीवेबल्स चेक कर रहे हैं, है ना, रिसीवेबल्स से जो पैसा मिला बाद में, है ना, आफ्टर द पीरियड एंड मे प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन। तो पैसा मिला, इससे मैं ये श्योर हो सकता हूँ कि अच्छा हाँ डेटर थे, नहीं आया समझ में। देखो ध्यान से देखो, प्रोसीजर कौन सा है पहले तो ये समझो। ये है फाइनेंशियल ईयर, हेलो हेलो हेलो, दिख रहा है आपको फाइनेंशियल ईयर, है ना। फाइनेंशियल ईयर के बाद देखो, एक्चुअली ऑडिट करने ना मैं बाद ही में आता हूँ ना, मैं मतलब यहाँ भी रहता हूँ मैं, लेकिन बाद में भी रहता हूँ, समझ में आ रहा है। ईयर खत्म होने के बाद भी आता हूँ। जब मैं ईयर खत्म होने के बाद आता हूँ तो ट्रांजेक्शन रुकते थोड़ी है। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, है ना। तो अगर इस दौरान कोई अमाउंट कलेक्ट हुआ, मैंने देखा कि भैया किसी बंदे ने मुझे पैसे पे करे, जिसको ये लोग डेटर दिखा रहे थे। हेलो हेलो हेलो, है ना। डॉक्यूमेंट्स देख के मुझे पता चला, हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है ना, है ना। तो कलेक्शन देख के मुझे पता चला, कलेक्शन देख के मैं क्या श्योर हो गया कि अच्छा पैसे मिले, मतलब तो डेटर तो थे, मतलब नकली डेटर तो नहीं है, ये बात ठीक है। दूसरा कि अच्छा इतना अमाउंट मिला, अच्छा मतलब इतना ही होगा, ठीक है, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस एक तरीके से वैलिडेट हो रहा है जब मैं कलेक्शन चेक कर रहा हूं तो, है ना। और मेरा एग्जिस्टेंस चेक हो रहा है, एग्जिस्टेंस चेक हो रहा है, वैल्यूएशन चेक हो रहा है, लेकिन कट ऑफ चेक नहीं हो रहा है इससे। मेरा एक असर्शन है कट ऑफ। कट ऑफ मतलब कि कौन से अकाउंटिंग पीरियड में, सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि पैसा कलेक्ट हुआ, लेकिन डेटर मेरा उसी समय का हुआ तो, एक दो दिन पहले का तो, और पिछले साल का हुआ तो, समझ में आ रही है बात। अमाउंट कलेक्ट होने से मुझे ये पता नहीं चल रहा कि डेटर इसी फाइनेंशियल ईयर का था। हेलो हेलो हेलो, एग्जाम्पल ये हैं ये सारे, रिलेवेंस का मेन मुद्दा अपन समझ चुके हैं, ये सब एग्जाम्पल चल रहे हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक है, धने, है ना। ऐसे ही एक और बता रहा है, सिमिलरली ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस अबाउट पर्टिकुलर असर्शन, फॉर एग्जांपल एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, is not a substitute for obtaining audit evidence regarding another assertion, for example valuation। अब तुम वैल्यूएशन चेक कर लियो, इसका ये मतलब थोड़ी कि एग्जिस्टेंस भी है, भाई इतनी वैल्यू के इन्वेंट्री है, लेकिन उसी डेट को है ये तो नहीं पता कर पा रहे ना तुम, नहीं आया समझ में। एग्जिस्टेंस बताता है कि 31 मार्च को मेरे पास ये इन्वेंट्री थी। अब तुमको उसने मान लो चेक करा दिया, 1 अप्रैल को तुमको उसने इन्वेंट्री दिखाई, बोला भैया इसका वैल्यूएशन करके देख लो। अब अपन ने वैल्यूएशन कर लिया, हमने कहा हाँ
तुमने जितनी वैल्यू पे दिखाए उतनी वैल्यू के ही है, समझ रहे, लेकिन तुमने ये कहाँ इंश्योर किया कि 31 मार्च को ही थे ये, 31 मार्च को ये थे या नहीं, ये तो चेक नहीं हुआ ना। नहीं आया समझ में? हेलो 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 गाइस, है ना? तो आपको मल्टीपल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं मल्टीपल असर्शंस को चेक करने के लिए, ठीक गाइस? ठीक है। अब on the other hand, audit evidence from different sources or of a different nature may often be relevant to the same assertion. हो सकता है कि मल्टीपल प्रोसीजर एक ही बात के लिए रेलेवेंट हो, मल्टीपल प्रोसीजर एक ही असर्शन के लिए रेलेवेंट हो, ठीक है गाइस? ठीक है ना? चलो अब क्या बोल रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो यहां थोड़ी सी अलग सी बात कर रहे हैं, अब ध्यान से समझना बेटा, हम कौन से पॉइंट पे हैं याद रखना, रेलेवेंस। हम समझ आ रहा है, हम रेलेवेंस की बात कर रहे थे और अभी हमने एग्जांपल्स किसके देखे, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के, असर्शंस के। हेलो हेलो गाइस, है ना? हाँ चलो अब देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर डिजाइन टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल टेस्टिंग हम करते हैं ताकि कंट्रोल के बारे में पता लग पाए कि भैया कंट्रोल प्रिवेंट कर रहे हैं मिस स्टेटमेंट, डिटेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, है ना? अब जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिजाइन करता हूं टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, तो includes identifying conditions that indicate performance of a control and deviation in the condition which indicate departure from adequate performance. The presence or absence of these conditions can then be tested by the auditor. कोई लेना ही देना नहीं लग रहा है यार यहाँ तो, चलो ठीक है, समझ रहा है? मतलब ये तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एक इंडिपेंडेंट बात है, रेलेवेंस से रिलेट नहीं हो रही है, समझ रहा है? लेकिन ठीक है चलो पढ़ लेते हैं, है ना? वो कह रहा है कि भैया देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या के लिए होते हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के साथ। तो मैं कोई ये कंडीशन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसमें कि मैं ये चेक करता हूँ, अरे यार बिल्कुल अलग ही सी बात है, पता नहीं क्यों दे दिया है ये बीच में, दैट इंडिकेट परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल। मतलब मैं कुल मिला करके कंट्रोल को टेस्ट करता हूँ। कंट्रोल को कैसे टेस्ट करता हूँ कि भैया कहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ उससे डिपार्चर तो नहीं है। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल ने सिक्योरिटी गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड को हमने बोला कि भैया सबके आई कार्ड चेक करके अंदर आने देना, तो ये कंट्रोल हो गया, आ रहा है समझ? तो अब इसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, समझ रहा है? मैं ऐसी कंडीशन, या मैं एक रैंडम बताता हूँ, ठीक है, कि मैं दिन भर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको, एक तो भैया वो बैठा रहता है क्या, समझ रहा है? कहीं वो चाय वाय के लिए, खाने वाने के लिए जाता है, तो उस दौरान क्या कोई एंटर कर सकता है? तो ये लूप होल हो गया ना कंट्रोल में, समझ में आ रही है बात? ठीक है। दूसरा, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको कोई कुछ भी आई कार्ड दिखा देता है और अंदर चला जाता है, तो कोई दिक्कत, मतलब तो इससे दिक्कत हो सकती है। तो जब मैं कंट्रोल टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कई पैरामीटर्स पे कंट्रोल्स को टेस्ट करता हूँ, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दोज कंडीशंस कैन बी टेस्टेड बाय द ऑडिटर, ठीक है ना? अभी अपन इसको फोकस नहीं कर रहे हैं। Substantive procedure are designed to detect material statement at the assertion level. They comprise test of detail and substantive analytical procedure. Designing substantive procedure indicate identifying conditions relevant to the purpose, है ना, and of the test that constitute a misstatement in the relevant assertion. ये थोड़ा ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई जो पर्पस है हमारा इसका असर्शन का, है ना, जो इस असर्शन पे हम पहुंचने वाले हैं, उससे रिलेटेड प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे। तो ऊपर अपन ने सारे एग्जांपल्स जो पढ़े हैं वो एक्चुअली उसी के हैं। देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी इसको अगर रिलेट करना है तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि भैया आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों उठाते हो, मेरी बात समझो, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों उठाते हो, मुझे बताओ गाइस, आप कंट्रोल टेस्टिंग क्यों करते हो? जैसे मान लो मैंने सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम्पल दिया, है ना, तो बहुत ज्यादा दूर का रिलेट हो जाएगा। चलो, एंटिटी का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, समझ रहे, सॉफ्टवेयर कंट्रोल है ना, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जो सेल्स रिकॉर्ड करता है,
समझ आ रहा है? मतलब जब भी हम कोई सेल करते हैं तो वो रिकॉर्ड करता है, समझ आ रहा है? तो मैं कंप्यूटर को टेस्ट कर रहा हूँ, है ना? समझ आ रहा है? चलो मैंने बता ही दिया एक तरीके से अगर देखा जाए तो चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। अगर मैं सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा हूँ, अगर मैं सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है ये चेक कर रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है? सेल्स को चेक करना, कहीं सेल्स अंडर स्टेट या ओवर स्टेट ना हो जाए। अगर सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है, समझ आ रहा है, विदाउट एनी डिविएशन, ठीक है ना, क्लियर है? तो क्या होगा? तो क्या होगा? अगर सॉफ्टवेयर ढंग से काम कर रहा है तो मतलब मेरी सेल जो है वो ओवर स्टेट या अंडर स्टेट नहीं होगी, जितनी है उतनी ही दिखाएगा। अगर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ निकल गई मेरी चेकिंग में, अगर मेरी चेकिंग में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ निकल गई, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एंटिटी के फाइनेंशियल बिगड़े होंगे, क्योंकि हो सकता है मैंने बहुत एक्सट्रीम में जाकर के चेक किया हो, जबकि नॉर्मली एंटिटी में ऐसा होता ही ना हो। गाइस मेरी बात समझ में आई आपको? क्योंकि अभी मैं और बोलने वाला हूँ इससे रिलेटेड। जितना बोला उतना समझ में आया, है ना? बाकी सबको भी, है ना? अब मैं इसकी डेप्थ में जा रहा हूं। मैंने कंप्यूटर खोला, मतलब कंप्यूटर खोला मतलब कि उसका प्रोग्राम खोला, समझ में आ रहा है? अब जब मैं उसका प्रोग्राम टेस्ट कर रहा हूं तो उसमें बहुत सारी कोडिंग होगी, समझ में आ रहा है? मैं आईटी एक्सपर्ट भी हूं, समझ में आ रहा है? मैंने डीसा क्लियर किया है, लेकिन ठीक है मैं आईटी एक्सपर्ट को भी लेके गया, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। अब मैंने जब वो प्रोग्राम खोला, समझ में आ रहा है, तो उसकी कोडिंग में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, समझ में आ रही है बात? तो जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा हूं सॉफ्टवेयर का, तो मैं पूरा सॉफ्टवेयर नहीं चेक करने लग जाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्योंकि उसमें तो भाई इंटरफेस डिजाइन की भी बहुत सारी बातें होंगी और बहुत मल्टीपल टाइप की उसमें वो होंगी। मेरा मेन फोकस क्या है? मेरा मेन फोकस है कि अमाउंट को कैप्चरिंग के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अमाउंट कैप्चरिंग, कैलकुलेशन और फॉरवर्डिंग के क्या उसमें इंस्ट्रक्शन है। एक पूरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, उस पूरे प्रोग्राम में, उन पूरे इंस्ट्रक्शंस में मेरे लिए सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस रेलेवेंट हैं, समझ में आ रहा है, जो कि अमाउंट की बात करते हैं। गाइस मेरा पूरा फुल एग्जांपल आपको समझ में आया कि नहीं? मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात को रेलेवेंस से रिलेट करने की कोशिश करता हूं। हेलो 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 गाइस, बताइए, हो गया? मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी वही वही चीजें चेक करना जो तुम्हारे लिए काम की हो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में भी वही वही चेक करना जो तुम्हारे असर्शन के लिए काम का हो। यही हो गया रेलेवेंस। फालतू चीजें मत चेक करने बैठ जाना। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था आपको एक एग्जांपल, जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एंटिटी ने, है ना, टेबल खरीदी, तो आपको क्या चेक करना है कि भैया टेबल जो है वो सच में खरीदी गई कि नहीं, जितनी वैल्यू में दिख रही है उतनी ही वैल्यू की खरीदी गई या नहीं, समझना है? ये चेक करने मत चले जाना कि अरे तुमने महंगी क्यों ले ली, ये तुम्हारा मतलब का नहीं, ये तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं। हेलो 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 गाइस, ठीक है? अब रिलायबिलिटी पे बात करें, है ना? रिलायबिलिटी इज कंपेरेटिवली वेरी इजी। और गाइस ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे, अगर याद हो तो रीड करो इसको। हमने इसको बहुत पहले ही कवर किया था और मैंने बोला था कि आगे आने वाले हैं आपको लिखे हुए। कुछ याद पड़ता है? हेलो हेलो, आए यार? फोटोकॉपी से ज्यादा रिलायबल ओरिजिनल, इंटरनल से ज्यादा रिलायबल एक्सटर्नल, ऑडिटर ने डायरेक्ट ऑब्टेन किया तो मोर रिलायबल। आ रहा है समझ में? ओरिजिनल इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी, रिटन इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। और इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल एविडेंस सब ज्यादा बेटर होंगे जब इंटरनल कंट्रोल से करते हैं, ठीक है गाइस? और ये रहा रिलायबिलिटी का डिस्कशन जो बहुत आसान सा है।
कि रिलायबिलिटी का मतलब कि एक ही चीज को लेकर के अलग अलग एविडेंस जब हमारे पास आए तो किस एविडेंस पे ज्यादा भरोसा करें, किस पे कम। सेल्स को लेकर के किसी की गवाही कम एविडेंस वाली है और वो जो बिल है वो ज्यादा एविडेंस वाला है। ये रिलायबल का एग्जांपल हो गया सीधा सीधा। हेलो हेलो हेलो, है ना। मतलब वो इंश्योर तो कर रहा है, मतलब मैं जो चीज चेक करना चाहता हूँ वही चीज के बारे में बता रहा है, लेकिन इतना भरोसा सा नहीं हो रहा है यार इसकी बात पे। ऐसा क्लियर है गाइस? ये पूरा आपको रीड करना है, फटाफट रीड करो, फिर अपन अगला स्टैंडर्ड पढ़ेंगे 580। लिखा भी है इसमें 580? क्या नालायक लोग हैं, लिखा भी नहीं है। चलो ठीक है, ये रीड कर लो, ये रीड कर लो, बुक तो है ही तुम लोग के पास। रीड कर लो, रीड कर लो। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओवरऑल लिख पाओगे, बस ये वाला कंसर्न है अपना, है ना, कि एग्जाम में अपन लिख पाए मतलब चीजें। जब आप लोग रीड कर लेंगे तो मुझे बताएंगे, है ना, ठीक है। कर लिया? आसान है, रिलायबिलिटी का डिस्कशन आसान है ना, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है। हाँ ये देखो, ये अच्छा छोटा सा बना रखा है इन लोगों ने, है ना। चलो, रिटन रिप्रेजेंटेशन। चलो, रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब बेटा थोड़ा लंबी कहानी है इसकी, आ रहा है समझ, लेकिन मुझे लगता है इन लोगों ने फटाफट खत्म कर दिया। नहीं नहीं, बहुत लंबा डिस्कशन है। ओ माय गॉड है ये तो। चलो इसको कल करेंगे बेटा, नहीं तो भारी हो जाएगा ये। है बड़ा सिंपल सा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि तुम पहले ऑडिट एविडेंस का ये वाला डिस्कशन खत्म कर लो, क्योंकि ये काफी रेलेवेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आ रहा है समझ में? और तुम मेरी बात पे रिलाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो ठीक है ना, जो समझ गए वो समझ गए, है ना। चलो आज की क्लास इतनी, बाकी कल, ठीक है गाइस। हाँ बेटा, देखो रेलेवेंस का जनरल मीनिंग तो पता है कि नहीं पता, ये बताओ, है ना। मतलब अगर मान लो कि तुम्हारा कोर्स नया आया है तो पुराने एग्जाम के पेपर तुम्हारे लिए क्या है, रिलायबल नहीं है या रेलेवेंट नहीं है, बताओ। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट अपडेट हुआ है, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट अपडेट हुआ है ना, मतलब कोर्स में नई नई चीजें आ गई, जैसे जीएसटी आ गया, है ना, तो पुराने पेपर्स में सर्विस टैक्स और वो सब है कि नहीं, तो वो पास्ट पेपर तुम्हारे लिए रिलायबल नहीं है या रेलेवेंट नहीं है। मतलब कि तुम उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते या वो तुम्हारे काम के ही नहीं।
काम का ही नहीं है ना, नहीं काम का ही नहीं है। अरे यार चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको एक्सट्रीम एग्जांपल देने पड़ेंगे, समझ में आ रही है बात। मैं कुर्सी खरीदने जा रहा था, समझ में आ रहा है, ठीक है, और एक आदमी मुझे बिल्डिंग के रेट बताने लग गया, समझ में आ रही है बात, ठीक है, तो उसकी बात रिलायबल नहीं है या रेलेवेंट नहीं है? रेलेवेंट नहीं है ना, मतलब रेलेवेंट का क्या मतलब है, क्योंकि मुद्दे की बात हो ही नहीं रही है ना। मेरे को वो रजिस्ट्री तक दिखा रहा है, समझ रहे हो, कि देखो इतने इतने रुपए का है ये मकान, समझ में आ रहा है, अभी मिल जाएगा। तो भाई तू बहुत अच्छी बात कर रहा होगा, तू बहुत भरोसेमंद बात कर रहा होगा, लेकिन मेरे को मकान ही नहीं लेना। हेलो हेलो, ठीक है ना। तो जब ऑडिटर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में एविडेंस लेने जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो उस बात से रिलेटेड सारी बातें मेरे लिए रिलेवेंट है, समझ में आ रहा है, और उसके अलावा सारी बातें मेरे लिए इररिलेवेंट है ना। अब जब मैं उस बात से रिलेटेड सारे एविडेंसेस देख रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो उन रेलेवेंट बातों के अंदर मैं रिलायबिलिटी चेक करता हूं, यानी पहले आ गया रेलेवेंस, समझ में आ रहा है, मैं पहले तो रेलेवेंस ही चेक करूंगा ना, तभी तो मैं रिलायबिलिटी पे आऊंगा, क्योंकि मैं किस चीज की रिलायबिलिटी चेक कर लूं, लेकिन वो रेलेवेंट ही नहीं है तो क्या मतलब की। गाइस आपको समझ में आ रहा है ना। तो जब भी मैं किसी को वो कुछ मेरे को वो एविडेंस दिखाएगा या बोलेगा, तो मैं ये देखूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, उसी का काम का है कि नहीं है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई ला दे। लेकिन अगर वो उससे रिलेटेड ही नहीं है तो मैं कहूंगा कि भाई कितना भी भरोसेमंद है, मेरे काम का ही नहीं है। समझ में आ रहा है। हेलो हेलो, ठीक, चलो, है ना, बाकी बाद में करते हैं गाइस। चलो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।